I am Dr. Anju Tanwar, Associate Professor in Physics, MSJ College, Bharatpur. So the topic which we are going to discuss today is point charge near conducting sphere at a fixed potential. We have a point charge near a conducting sphere held at a fixed potential V. The potential is same as for the charged sphere, which we discussed in the previous video, except that the charge capital Q minus Q dash at the center is replaced by a charge V into A. And this can also be seen as the potential we obtain for the point charge in the presence of a charged insulated conducting sphere is given as phi of x is equal to 1 by 4 pi epsilon naught within brackets q over x vector minus y vector and modulus minus aq over y x vector minus a square over y square times y plus capital Q plus a by y times q over x vector. So this was the potential we obtained for the point charge in the presence of a charged insulated conducting sphere, and we can see from this, because at x equal to a, the first two terms will cancel and the last term will be equal to v as required. So the potential is same as for the charged sphere, except that the charge capital Q minus Q dash at the center is replaced by a charge V times A. So we can write that the potential now becomes phi x is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and then we have this q over x minus y minus this is a into q, and this is y x vector minus a square over y square times y vector. Now this becomes plus v into a over x vector. So now the equation 1 changes in the form of equation 2 for point charge near a conducting sphere held at a fixed potential V. So from here we can find the force on the charge Q due to the sphere at a fixed potential, and then just we can write the expression. The force will become F is equal to Q over y square V into A minus 1 over 4 pi epsilon naught Q times A y cube over y square minus a square ka whole square, and this is y over y. This is equation 3 for the force. So in equation 2, of course, we have substituted the value of the image charge q dash and as well as the distance of the image charge y dash. So we are not getting q dash or y dash in, neither in equation 2 nor in equation 3. Right. Now for corresponding values of 4 pi epsilon naught Va by Q, this corresponding values of
4 pi epsilon naught VA over Q and capital Q by small q, this force is very similar to that of the charged sphere as we calculated in the last video. Although the approach to the asymptotic value VAQ over y square is more gradual. For VA much greater than Q, the unstable equilibrium point has the equivalent location y at approximately a to 1 plus 1 by 2 under root of Q over VA 4 pi epsilon naught. तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमने क्या किया है कि हमें निकालना है पोटेंशियल, हमें निकालना है पॉइंट चार्ज जब एक कंडक्टिंग स्फीयर पे जो कि फिक्स्ड पोटेंशियल पर होता है उसकी वजह से। तो इस केस में ये उसी तरीके से है जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल में और पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था, जहाँ हम निकाल रहे थे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो वहाँ पर हमने माना था कि ओरिजिन पर कैपिटल Q माइनस क्यू डैश चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो उस चार्ज को अब अगर हम रिप्लेस कर दें बाय चार्ज V इंटू ए से, इस चार्ज से अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो वही पोटेंशियल की वैल्यू हमें वहाँ पे मिलेगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं वो इक्वेशन 1 की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखी है कि फाई ऑफ x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट्स में q ओवर x वेक्टर माइनस y वेक्टर मॉडुलस माइनस a q ओवर y x वेक्टर माइनस a स्क्वायर बाई y स्क्वायर y वेक्टर मॉडुलस प्लस कैपिटल Q प्लस a बाई y टाइम्स q ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो इसमें अब हमें रिप्लेस करना है इसको v इंटू ए से। तो क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो पहली दो टर्म फिर कैंसिल करेंगे और फिर हमें जो वहाँ से पोटेंशियल v ही प्राप्त होगा। तो इसलिए फाई ऑफ x हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट्स के अंदर है q बटे में x वेक्टर माइनस y वेक्टर माइनस ए क्यू ओवर y x माइनस ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर टाइम्स वाई वेक्टर मॉडुलस प्लस वी ए ओवर एक्स। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी ए बाई क्यू की और कैपिटल क्यू बाई क्यू की, ये फोर्स बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह की फोर्स हमें प्राप्त होता है जब हम चार्ज स्फीयर का केस जिस तरह से हमने डिस्कस किया था। हालांकि जो अप्रोच है एसिम्प्टोटिक वैल्यू के लिए वी ए टाइम्स क्यू बाई वाई स्क्वेयर वो ज़्यादा ग्रेजुअल है यहाँ पर, और अगर हम वी ए जो है उसको मच ग्रेटर दैन क्यू मान करके चलते हैं तो जो अनस्टेबल का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उसका जो इक्विवेलेंट लोकेशन है वो हमें प्राप्त होता है y बराबर है अप्रॉक्सीमेटली a इंटू 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ क्यू बाई वी ए टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो मेथड ऑफ इमेजेस का इस्तेमाल है, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स जहाँ हमें बाउंड्री वैल्यूज़ प्रॉब्लम जहाँ कंडीशंस बाउंड्री कंडीशंस दे रखी होती हैं वहाँ पे हम मेथड ऑफ इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पीछे की हमारी जो 3 वीडियोस हैं वो मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर ही बेस्ड रही हैं, जिसमें कि पहले केस में हमने पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हमने वहाँ पर स्टडी किया था। सबसे पहले हमने ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर लिया और उसके बाद में हमने चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर लिया, और प्रेजेंट केस में हमने ये माना कि जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है वो किसी फिक्स्ड पोटेंशियल पे है। तो तीनों ही केसेस में हम मेथड ऑफ इमेजेस का इस्तेमाल करके हम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें तो वहाँ पर हम फिर मेथड ऑफ इमेजेस की मदद से किस तरह से पोटेंशियल
और फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे।